Hello everyone, today was the last day of our community project, that is on affordable and clean energy under the SDG 7. As it was the last day, so we wanted to have the feedback from the community that we have worked with till now, all these days. So first we went to the school, that is the Andy Victor School, Jalandhar, Kent, where we interacted with the students because we wanted to know whether the message that we wanted to convey, whether it has reached to them or not. We asked them certain questions about the different type of energies that are there in nature and whether some of them are clean energies, some of them are renewable energies, and some of them are non-renewable energies. We wanted to know about them. So we asked them certain questions and they have positively given reply to those questions. So we were happy that we had gotten the good feedback from the students. And then after getting the feedback from the students also, then we went to the staff and the teaching and also teaching staff of the school, and then we have interacted with them. We wanted to know whether they were also happy with the efforts that we have made till the few days that we have spent in the school during our work hours. So we interacted with the teaching staff as well. They let us know that they were happy with the efforts that we have made till now. And after interacting with the staff and the students of the school, we have interacted with the NGO with which we have collaborated with, that is the Green Earth NGO Kurukshetra. So we have interacted with them because we wanted to know, because they are the experts in this area, so we wanted to know from them that whether they are also satisfied with the work that we have done or not. So we were happy that they were also a bit satisfied with us. So we wanted to know from you as well if you are also satisfied with our work or not. So you can also watch our previous videos and you can also judge our work that whether it is what do you think that it is the right thing to do, and you are also satisfied with what we have done or not. So please do watch our videos, the previous videos and today's video as well. So you will be giving cutting an insight of what we have done till now. स्कूल ऑफ एजुकेशन जितने बच्चे आप आए हो, आपका एनडी विक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप अपने मिशन को लेकर आए हैं, या आपने वो स्कूल सिलेक्ट करना है जहाँ पर वो बच्चे हों जिनको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा या नहीं किए जाते, या गरीब घर के बच्चे उनको नहीं देख रहे, तो आपको सिलेक्शन के बाद ये ठीक लगा। ये ठीक लगा कि बच्चे यहाँ के हैं, थोड़े बच्चे हैं और थोड़े बच्चों में थोड़े टीचर हैं। मैं ये बात तो झूठ बताऊंगी नहीं कि बच्चे थोड़े हैं, ये भी नहीं कहूँगी कि टीचर कम है, 4 टीचर है और वो कैसे पढ़ाते हैं। तो आपने ये चेक करना था, आपने बच्चों को देखा और उनसे बातचीत की, आपको सेटिस्फैक्शन लगी, तो आपने यहाँ पर ये अपना मिशन जो था उसको आरम्भ किया। तो मुझे सबसे अच्छा तो आपने मुझसे परमिशन मांगी, तो मैंने परमिशन केवल आपको ये देखते थे कि जब मैंने आप सबको देखा, क्योंकि मेरे भी 56 ईयर इस टीचिंग अध्यापन में गुजर गए, तो मुझे भी ऐसे लगा कि आप सबकी जो मन की भावना है बड़ी ऐसी थी कि हम बच्चों के लिए कुछ करते जाएं, बच्चों को सिखाएं कि मैडम हम चार्ट लाए हैं, हमने बच्चों को एक्टिविटी करानी है, हमने बच्चों को ये कराना है वो कराना है। ये बात आपने जब बताई और इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस रही, हर एक्टिविटी को कितने ढंग से आपने किया। और आप देखिए कि मैं लगातार यहाँ बाहर बैठी रही हूँ, बाहर बैठी रही हूँ, नहीं पे बैठी हूँ, बाहर बैठी रही सिर्फ इसीलिए कि मैं ये देखूँ कि ये काम आप किस तरह कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने आके पूछा कि मैडम छुट्टी हो गई है, मुझे नहीं, अंदर जाके देखे क्लासेज लगी है। तो ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस आपने रखी और अनुशासन बना के रखा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। बच्चों को पढ़ाने से पहले हम उनको इतना सिखा दें, उनको दिशा दिखा दें कि पढ़ना और पढ़ाई क्या है, इसमें शांति से हम बैठना है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बनाना है, ध्यान लगाना है। जो आप करा रहे, जब तक बच्चा शांति से नहीं बैठेगा या अनुशासित नहीं रहेगा, इधर उधर हाथ यूज करेगा, तो उसकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। सबसे बढ़िया बात तो मुझको ये लगी, या आपने बच्चों को बड़ी ईमानदारी से काम कराया। और मैं ये जो बच्चे इनका इक्विपमेंट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई सोचे कि इन बच्चों को कैसे लिया, 2 बच्चे जो है भी इधर से आए लेबर बेचारे, अपने बच्चा एक बांध रखा है, तो वो कर रही थी काम, उसके 2 बच्चे नीचे खेल रहे थे। अचानक हमारे PM ने देखा तो ले आया, मैं क्या ले आया, चल कोई बात नहीं। हमने उनको बड़े प्यार से गाना शुरू कर दिया, अब हमें इंटरेस्ट हो रहा है।
कई बच्चों को भगवान की ओर से होता है, वो पढ़ना चाहते हैं, कई नहीं पढ़ना चाहते, पर वो पढ़ना चाहते थे तो हमें मिल गए, हमने उनको आरम्भ कर दिया। मुझे इस कार्य में इतनी खुशी है कि इनको हम कहते थे ध्यान जरूर रखना, ममता भावुकता 2 चीज़ें आवश्यक है हमारे लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि हृदय में ममता नहीं है और भावुकता नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। पढ़ाने के लिए केवल ये नहीं है कि हमने ग्रामर रटा दी, ऐसे रटा दिए, हो गई पढ़ाई, नहीं। जीवन की दिशा दिखाओगे तो हर बच्चे की दशा बदल जाएगी। ये देश के अंदर की प्रॉब्लम जो अब आ रही हैं, ये इन्हीं के कारण आ रही हैं। कहीं ना कहीं अध्यापक हम लोग मार खा गए जो हम बच्चों को नहीं सिखा पाए। ये दोष या पेरेंट्स घरों में, और ज़्यादा टाइम यहाँ 8 घंटे हम हमारे पास लगाते हैं, या हम कहीं ना कहीं हमारी ऐसी कमी रह गई जो आज हम आंखों से देखते हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ हम लोगों की कमी प्रदर्शित होती है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बीइंग ए टीचर हमने देश को कौन सा चरित्रवान बच्चा देना है और कैसा देना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू मैम। मे गॉड ब्लेस यू। आप एक अच्छे अध्यापक बने, ये मेरी प्रार्थना। थैंक यू मैम। हम आपके पास इतने दिन आए, आपने क्या सीखा हमसे, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका हमारे साथ? मैम जी, आप जब आए थे मैम तो आपने जो मैम सिखाया ना हम वो तो बहुत अच्छा था। जो मैम सिखाया जो एक्सपीरियंस था ना मैम वो भी बड़ा अच्छा था। मैम जो आपने मैम सोलर एनर्जी के बारे में समझाया मैम वो भी बहुत अच्छा आपने समझाया है। तो मैम हम आपने बताया कि मैम बिजली कौन कौन सी चीज़ से बनती है, मैम कैसे इस्तेमाल मैम बनती, मैम जैसे कोयले से, सूरज से, पानी से मैम बनती है ना। तो मैम मैम जब हमारा कोयला भी ख़त्म हो जाए मैम सोलर एनर्जी जो मैम वही हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी। मैम जो बिजली की कटौती थी ना मैम उसमें मैम सबसे बेस्ट है वो। तो मैम उसमें मैम एक बार में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मैम उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी उससे। तो मतलब लाइट रहती है, जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैम आपने सुना है कि बिजली और सूरज, पानी और हवा से बिजली चलो तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। ओके सो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ आए इतने दिन, हमने जो काम किया तो आपका एक्सपीरियंस बताओ और आपको कैसा लगा, ये सब बताओ कुछ हमारे बारे में। अब आया अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा सिखाए। अच्छा, हमने बहुत अच्छा सिखाया। तो ये पहले आपको क्या कुछ नया जानने को मिला इससे? यस सर। मतलब क्या क्या नया, मतलब कुछ और बोलिए आप हमारे बारे में। और बिजली के बारे में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो और जो हमने एक्टिविटीज़ कराई बहुत सारी, तो क्या उसमें सब में आपने एंजॉय किया? यस सर। और कुछ मतलब ये पहले स्कूल में रेगुलर डेज में होता था? नहीं। अच्छा, तो चलो और कुछ हमारे लिए आप चाहते हैं कि हम आगे भी आते रहें? Yes, और sir. कुछ ऐसे ही मतलब आपको पढ़ाएं भी, कुछ और भी एक्टिविटीज़ बहुत सारी कराएं? यस सर। क्या आपको लगता है हम और आना चाहिए? यस सर। चलो हम पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक आपके साथ हम इतने दिन रहे हैं, आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है, तो आप बताएंगे कि आपने क्या क्या सीखा है और आप क्या क्या चेंज करोगे, क्या बदलाव लाओगे अपने में हमारे जाने के बाद? हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे बारिश होती है और उससे वो पानी इकट्ठे होकर उससे बिजली बनती है और पेड़ से ऑक्सीजन भी मिलती है जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी होती है। हमें बिजली ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें बिजली बचाना चाहिए और हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास पानी रहेगा तो वो बहुत काम आ सकता है। किस किस काम आ सकता है पानी? जैसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पक्षियों को पानी भी दे सकते हैं और पंछी को नहला सकते हैं और उससे हम बिजली बना
बन सकती है। किस किस चीज़ से बिजली बन सकती है? पानी से, हवा से और सूरज से। और जो हम कचरा हम उठाते हैं उसको हम देते हैं, उससे हमें क्या क्या मिल सकता है? उससे हमें बायोगैस भी मिल सकती है और बिजली भी मिल सकती है। क्या क्या मिल सकता है? बायोगैस और बिजली। तो हमें उस कचरे को अच्छे से रखना चाहिए, जो प्लास्टिक का है उसको अलग रखना चाहिए, और जो पेड़ पौधों से जो सब्जियां मिलती हैं या फ्रूट्स का कचरा होता है उसको अलग रखना चाहिए कि एक साथ रखना चाहिए? क्योंकि जो पेड़ पौधों वाला कचरा है उससे हमें क्या मिलता है? खाद मिलती है। और बिजली और बायोगैस। क्या मिलता है? बिजली और बायोगैस। वेरी गुड। बिल्कुल जैसे हम काम करते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही क्वालिटी बिल्डअप होती है। वो कैसे होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि उसे गुस्सा तो किसी और बात से आ रहा है, पर उसी टाइम पे हम पहुंचे के बात करने के लिए उसके साथ, तो वो क्या करेगा कि वो जो उसके अंदर उसकी जो कहते हैं ना कि भड़ास है वो निकालने की कोशिश करेगा। बट हमें क्या करना है कि उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। हमें भी तो गुस्सा आ सकता है उसकी बातों से। यस सर। वो क्वालिटी बिल्डअप करने की बात है कि एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे पेशेंस रखी जाए, ताकि जो हम जिस पर्पस के लिए, जिस काम करने के लिए हम निकले हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। हमें वो भी अपनी टास्क कंप्लीट करनी है, ना कि जो सामने वाले की जो एंगर थी उसकी वजह से परेशान हो गया हम खुद को ही डिक्रीज कर लें। इसलिए हमें इम्प्रूव करना है। यस सर। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, जब फील्ड में जाते हैं तभी पता चलता है ये सब बातें। यस सर। यस। तो आगे आप बताइए संदीप, मिस्टर संदीप। यस सर, जैसे कहते हैं सर, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था सर। और जैसे कि हम इंटर्नशिप सर अभी 2 साल से सर ऑनलाइन ही कर रहे हैं सर, तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं था बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे सर। यस सर, जैसे कि और हम दिन में घरों में भी जा रहे थे लोगों से मिलने, तो अभी गर्मियों के दिन है तो कितना भी करो 9 से 10 बजे तक धूप इतनी हो जाती थी कि बाहर घूमना मुश्किल होता था। फिर भी हम जाते थे तो भी लोग किसी घर में पहुंचते थे तो ऐसा भी टाइम हो जाता था कि दिन में लोग सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी जाते थे तो भी मतलब वो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें भी फील होता था, लेकिन फिर भी कैंपेनिंग करनी होती थी तो वो भी एक चैलेंज था, लेकिन फिर भी हमने सब मिल के किया। बिल्कुल, जो चैलेंजेस हैं उनसे ही सीखते हैं। चैलेंजेस ना आए तो हम सीखेंगे नहीं, और जब फील्ड में जाएंगे तो चैलेंजेस आएंगे भी और उनसे सीखेंगे भी, इम्प्रूव भी करेंगे। जब आप अगली बार जाओगे तो दुगनी तैयारी से जाओगे आप। यस सर। आपको जैसे आपने पहले ये प्रैक्टिकल वर्क किया, डोर टू डोर गए होंगे, लोगों की बेल बजाई आपने, घरों से निकल के आए लोग, तो कुछ ऐसा भी लगा कि आपको ये क्या चीप वर्क हमने दे दिया? नो सर। सर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था कि हाँ कुछ तो अच्छा मौका मिला करने। यस सर। फील्ड में देखो, कई लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि जैसे आप अच्छे हो, आपको फील्ड वर्क अच्छा लगता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि क्या इंटर्नशिप है, क्या चीप वर्क दे दिया, हम उस लेवल के पर्सन नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं तो जज बनूंगा, क्या लोगों को धूप में धक्के खाने के लिए भेज दिया। तो ये चीजें कई लोगों को लगती हैं। आपने भी कई लोग ऐसे देखे होंगे कि आप जैसे 6 लोग हो, आपने इंटर्नशिप की, क्या सभी ने की ऐसे इंटर्नशिप प्रैक्टिकली?
बहुत कम लोग होते हैं। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो आप जब जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, और इस काम को जैसे हम सीखते हैं, ये काम कोई चीप काम नहीं है।